જય જિનેન્દ્ર. જે તને ડ્રીમ્સ આવે છે એ ડ્રીમ્સ આવ્યા પછી એ જગ્યાના તને દર્શન થાય છે, રાઈટ? બરાબર. અને જે પાછા બીજા ડ્રીમ્સ આવે છે એ વ્યક્તિને પણ તને મળવાનું થાય છે. તો આ એક તારે એમ સમજવાનું કે આ એક આપણા જ અમુક પુણ્યોદયનો આ પુણ્યોદય હોય, જેમ કે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો ઉદય હોય ને ત્યારે આ બધું થાય ખાસ. અને એક પ્રી પ્લાન તને તૈયાર કરે છે. તને તારું પુણ્ય એક તૈયાર પ્લાનિંગ આપે છે તને કે બસ હવે તને આ સપનું આવ્યું છે તો હવે તારે આ વ્યક્તિને તારે આગળ મળવાનું છે. અને તું એ રીતે તૈયાર બી થાય છે. તું એ રીતે તૈયાર પણ થાય છે. તો આ એક તારું પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો ઉદય છે કે આ વસ્તુ તને પહેલા સપનું આવવું અને પછી એ જ વ્યક્તિ, એ જ ભગવાન અને એ જ જાત્રાનું થવું. તો આ એક આપણે એમ સમજવાનું કે આ આપણું પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો પણ ઉદય અને ખાસ કરીને નવું પુણ્ય બંધાવવાનો સમય, ઇન્ટ્યુશનનો સમય. આ બધું એક જાતનું ઇન્ટ્યુશન છે જે આપણી અંદર, તારા મેમરીની અંદર, તારા અત્યાર સુધીના જે સંચિત કર્મ છે એમાં જે જગ્યાએ તું ગઈ હોય એ જ વસ્તુ સામે આવવી અને એ જ વસ્તુ પાછી દેખાવી. પહેલા તને સપનામાં આવવું અને પછી પાછું તને તરત દેખાવું. આ બધી વસ્તુ એક તારે એમ સમજવાનું કે આ એક પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કર્મ બંધાવવાનો આ સમય છે. હા, બહુ સારી વાત છે આ બધી વસ્તુ. મેની ટાઈમ્સ આઈ ઇવન ગેટ ધ ઇન્ટ્યુશન કે હું અહીંયા આ કામ કરવા જાઉં છું પણ મારું કામ નહીં થાય. અને પ્રેક્ટિકલી ઇફ આઈ ફુલ્લી પ્લાન કે કામ કરીને જ આવી, બટ ઇફ ઇન્ટ્યુશન મને મેસેજ આપે કે આ નહીં થાય તો નહીં જ થાય. એન્ડ મેની ટાઈમ્સ હું નીકળું અને વિચાર જ ન હોય કે હવે આ તો કામ પોસિબલ જ નથી, પણ હું છોડતી રહું છું અને એ પ્રેક્ટિકલ બની જાય. એ ઓન ધ સ્પોટ વિધિન 2 મિનિટ થઈ જાય છે. હવે છે ને, જો એક વસ્તુ સમજજે કે જે રીતની તારી સ્થિતિ છે, તારી સિચ્યુએશન છે, તને ઇન્ટ્યુશન પાવર, તને પ્રી પ્લાન ની સમજ, એ બધી તને વસ્તુઓ થઈ રહી છે. કુદરતી ઇન્દ્રિય તારી કામ કરી રહી છે. આ બધી બાય નેચર કામ કરી રહી છે, બરોબર? તું કઈ આ સબ્જેક્ટમાં કશું જાણતી નથી. તારે હવે એમ સમજવાનું કે આપણા અમુક ચક્રો જાગૃત થઈ જાય ને ત્યારે આ બધી વસ્તુઓ બને. જેમ કે પેલું ગળાનું વિશુદ્ધિ ચક્ર જાગૃત થઈ જાય તો આપણે જે બોલીએ એ બને, વચન સિદ્ધિ જેવું મળે કે તું જે કંઈ બોલશે કે આવું થશે એ વસ્તુ બને. પછી આપણી અહીંયાની આજ્ઞા ચક્ર જાગી જવું. આજ્ઞા ચક્ર જાગે તો આપણે એને ઇન્ટ્યુશન કરી શકીએ કે આ વસ્તુ તું જુએ અને એ વસ્તુ પછી થાય. તું જે જુએ છે, તું સપનું જુએ અને પછી એ વસ્તુ બને. એટલે આ બધા તારે એમ સમજવાનું, હવે તારા બધા અમુક ચક્રો જાગૃત થઈ ચૂક્યા છે અને એ ચક્ર પ્રમાણે તને રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે. તો હવે તારા માટે બહુ સાચવવાની જગ્યા આવી ગઈ. સાચવવાની જગ્યા ત્યાં આવી ગઈ કે બને ત્યાં સુધી કોઈનું પણ ખરાબ વિચાર્યું હોય તો એને તરત મગજમાંથી કાઢી નાખો. અને ખરાબ જેવું કોઈકનું ખરાબ થવાનું છે જો એવો પ્લાન જેવો મગજમાં આવે તો એને બચાવવાની તારે તરત કોશિશ ચાલુ કરી દે. તારે કહેવાનું નહીં કોઈને. તારે કોઈને કહેવાનું નહીં કે તારું મેં આટલું આવું ખરાબ જોયું. માન કે કોઈકનું કંઈક ડેથ જોઈ લીધું કે કંઈક એવું જોઈ લીધું, એને એમ કહેવાનું કે તું આ રીતની તારી તબિયતની હેલ્થ જલ્દી ચેકઅપ કરાવ, તું ટાઈમસર ચેકઅપ કરાવ, તારું તું જોઈ એકવાર ડોક્ટરને મળ. એ રીતે આપણે એને ઇન્ટ્યુશનથી કહી દેવાનું. કારણ શું છે કે તારી હવે કોશિશ, તને આગોતરી જાણકારી થાય છે તો તારી હવે પહેલી કોશિશ એ હોવી જોઈએ કે આ જે વ્યક્તિની તને જાણકારી થઈ છે એ વ્યક્તિ સુધી તારા ઇન્ટ્યુશનથી એ વાત પહોંચાડવાની કે ભાઈ તમે આ બાબતમાં એલર્ટ રહો. અને ઘણી વાર છે ને સામેવાળું ઓલવેઝ આઈ ડોન્ટ નીડ ગુડ પીપલ, સમટાઈમ્સ ઇફ દેર આર બેડ પીપલ. આપણે કહીએ છીએ મનોવર્ગણના પૂતગલોથી ખ્યાલ આવી જાય કે સામેવાળો શું વિચારે છે. મેની ટાઈમ્સ વોટ એવર દે સ્પીક ઇન ધેર માઇન્ડ આઈ કમ ટુ નો. એ પણ મારી સાથે ઘણી વાર થાય. એટલે આ એક હવે ઉપરના ચક્રો જાગૃત થઈ ગયા છે, સમજી લે. આમાં કઈ નથી, આપણા ઉપરના ચક્રો જાગૃત થઈ ગયા છે. મનોવર્ગણાના પૂતગલથી સામેની વ્યક્તિ શું વિચારે છે દેખાવું એ જ વસ્તુ છે કે તારું વિશુદ્ધિ ચક્ર જાગૃત છે. એટલે જે ચક્ર, આજ્ઞા ચક્ર, વિશુદ્ધિ ચક્ર, આ બે ચક્ર જયારે જાગૃત થઈ જાય પછી તારે વધારે સાચવવાનું છે. બસ હું તને એટલું કહીશ. કારણ શું છે, જો મેં પહેલા પણ સમજાવ્યું છે, ફરીથી એક વાત સમજાવું. જ્ઞાનને આવરણ એને જ લાગશે જેની પાસે જ્ઞાન હશે. જેને જ્ઞાન છે ને એને બહુ સાચવવાનું છે. જેને થોડું ઘણું પણ જ્ઞાન છે એને એટલું બધું સાચવવાનું છે કે તમને જે પણ જ્ઞાન થયું છે એનો અટકાવ તમારે જ નથી કરવાનો.
તમારે એના આવરણ લગતા બચવાનું છે. જેને જ્ઞાન થયું નથી, અજ્ઞાની હોય કે જેને સમજ જ ન હોય, એને તો કશાથી બચવાની જરૂરત જ નથી. એને મહેનત કરવાની જરૂર છે, પણ એને બચવાની જરૂર નથી. પણ જેને થોડું પણ જ્ઞાન હોય, જેને થોડી પણ આવા ઇન્ટ્યુશન પાવર હોય, એને વધારે સાચવવાનું છે. એટલે વધારે સાચવવાનું એટલે ये आपको उस जगह पे संभालना पड़ेगा सबसे ज्यादा कि जो पावर आपके पास पहुंच चुका है, जो इंट्यूटिव पावर जो पहले से आपको समझ में आ रहा है, आपका विशुद्धि चक्र जागृत है या आपका आज्ञा चक्र जागृत है, तो आप ये सोचो कि परमात्मा आपके द्वारा किसी और की तकलीफ को दूर कराने के लिए भेजा है. जैसे कि हाँ, जैसे कि વસ્તુ મારી સાથે થાય છે. हाँ, जैसे परमात्मा महावीर स्वामी અને મને ખબર પડી જાય તો એ અગર હું એ મહાત્માને ટચ કરી લઉં કે એમને મને નાકમાંથી ખૂન નીકળે, વેધર ઇઝ પેરાલિસિસ, ડાયાલિસિસ યા કોઈ પણ કિડનીના પેશન્ટ, અગર હું મારા હાથથી એમને મેડિસિન આપું તો જે મેડિસિન કઈ કામ ના કરશે એના ઉપર કામ કરી જાય. બસ તો આપણે એમ સમજવાનું. એ ટચ પણ મારો એમને મળી જાય ને તે એકદમ ઓકે. તો હવે તારે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. હા, તારે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે પહેલા તો આ વાતની ચર્ચા તું આ જાણકારી જેની પાસે, જેમ તને અમારી પાસે જાણકારી લેવી હતી ને એટલે તે મારી સાથે કરી. બાકી એ સિવાય હવે કોઈ પાસે આ ચર્ચા નહીં કરતી, કોઈને પણ કહેતી પણ નહીં કે હું આવી રીતે તમને અડીશ તો તમને સારું થઈ જશે. એ ભાવથી તું અડે એટલે તું હવે પહેલા તો આ ભૂલ નહીં કરતી. બીજું ખાસ એ કરજે કે તારી आसपास, क्योंकि भगवती सूत्रों में ना एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी. भगवती सूत्रों में परमात्मा ने एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ कह दिया है कि आपके अवग्रह में, अवग्रह शब्द है, आपके अवग्रह में कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर हो तो आपको सबसे पहले दौड़ के पहुंच जाना. मतलब अब सुनो, अवग्रह का मतलब सुनो. मतलब अगर आपके अवग्रह मतलब आप जहां तक पहुंच सकते हो, अवग्रह का मतलब ही आप जहां तक पहुंच सकते हो. तो आपके आसपास के एरिया में कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए. तो ये देखने की जिम्मेदारी आपकी. अगर आपने नहीं देखा तो भी आप दंडित हो जाओ, तो भी आपके आत्मा के ऊपर कर्म लगेगी. तो अब आपको ये चीज को संभालना है, ये बात को फ्रेम कर देनी है. मेरा सारा काम बाद में, अगर किसी की भी कोई तकलीफ होगी तो उसको मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा. बस ये एक जीवन मंत्र बना दो कि आपके घर के काम 2 कम हो जाए चलेगा, 4 काम कम हो जाए. घर वाले अगर बोल भी मतलब बोले भी ना, डांटे भी ना, तो भी आपको निग्लेक्ट नहीं करना है. आपको दोनों तरफ को संभाल लेना है, उसके बात को निकाल देना है. बोलना है कि भाई जितनी जरूरत आपको है ना उतनी जरूरत दूसरे को भी है. बस मेरे लिए आप भी जैसे आप हो वैसे सब हो. आपको भी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सभी जीव करूं शासन रसी की भावना में जाना पड़ेगा. ये भावना ऐसी है कि कोई भी दुश्मन भी सामने आ जाएगा ना, आपको सोचना ही नहीं कि कोई आपका दुश्मन, कोई भी सामने आ जाए आपकी ओर से, उसको पॉजिटिव और जो भी असरकारक बात है उस तक पहुंचना ही पड़ेगा. आपको पहुंचाना पड़ेगा. बस ठीक है, आज आपने ये बता दिया, बहुत अच्छा किया. इससे होगा क्या पता है, बहुत लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट पता हो तो लास्ट क्लास में ही एक बात बोली थी कि हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है कि हमारे आत्मा के ऊपर से कौन कौन से कर्म हटे हैं. आपको फील होता है, ये जो फील आपने बताया ना वो वही बात है. आपको फील हो रहा है कि मेरे ऊपर से ये ज्ञानावरण भी हटे हैं, मनोवर्गणा के पुद्गल भी हट रहे हैं. आपको बहुत सारी चीजों का इंट्यूशन हो रहा है, आपके चक्र की जागृति हो रही है, आपके बोलने से सामने वाली व्यक्ति को फायदा हो रहा है, आपके कुछ काम करने से सामने वाली व्यक्ति को फायदा हो रहा है. तो ये सारी चीज तुरंत मालूम पड़ जाएगी आपको. अब जैसे जैसे ये स्टेज में भी आप बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको सब चीज फील होती जाएगी. अब आपके लिए एक ही फोकस होना चाहिए कि मेरे आसपास का छोटा से छोटा कोई भी जीव अगर उसको छोटी से भी पीड़ा हो रही है तो आप तुरंत दौड़ के जाओ. बराबर. अब ये फोकस रखना है, क्योंकि जब कुदरत कुछ आपको कोई चीज देती है ना, कुदरत की ओर से आपको कोई पॉजिटिव चीज अगर मिल रही है ना, तो वो उसका भला हो इसी कारण से मिल रही. राइट. तो आपको अपना तो देखना ही है. वो तो अभी भगवान है, घर वाले खुद आसपास वाले भी थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर आप घर का नहीं देख पाए, और वहां का काम चल रहा है ना, कोई बात नहीं.
वहां का काम हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो देखने की ड्यूटी है आपकी। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको निग्लेक्ट करना है। आपको हर जगह, और कुदरत साथ देगी ही देगी, इतना सपोर्ट करेगी कि पूछो नहीं। आपके घर वाले, आप घर में 2 नौकर मिल जाएंगे, आपके घर की इतनी कैपेसिटी भी हो जाएगी, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। मैं कह रही हूँ अपने आप हो जाएगा। आपको कोई भी छोटी सी चीज के लिए आपके घर वाले नहीं रुकेंगे, क्योंकि यही व्यवस्था है। इसको ही आप पुण्य की व्यवस्था मानो। ये पुण्योदय है। आपका पुण्योदय इतना है कि बाहर वाले को अगर आपके ये जो ज्ञान और ये जो आपकी व्यय बच्चे, उसका अगर फायदा मिलना हो ना, तो घर वाले का तो अपने आप सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो पुण्यशाली जीव की यही निशानी है। आपके दिन पुण्य बढ़ रहा है, तो वो एक तो पुण्य घटे नहीं और आपका पुण्य हर लोग तक पहुंचे। ये 2 चीज का आप ध्यान रखो। बराबर? ठीक है, चलो अभी अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा हुआ आपने आज शेयर किया ना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो अभी आगे जा रहे हैं हम। आपको दिख रहा है ना? सिर्फ ये बता दीजिएगा, अगर नहीं दिखे तो तुरंत बोलो। दिख रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ, चलो अभी जो हमने कल जो 3-4 गुणस्थानक तक गए थे, वही गुणस्थान को हम थोड़ा सा याद कर ले। याद इस प्रकार कर ले जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उस तरह से हम उसको 1 by 1 उसको याद कर लेंगे, फिर सीधे चौथे गुणस्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? मैं एक बार सबकी आवाज बंद कर रही हूँ, जब भी जरूरत होगा आप खोल लीजिएगा। चलो, मिथ्यात्व गुणस्थानक, जो आपने पहला गुणस्थान जाना उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे हम। मिथ्यात्व यानी कि अतत्व श्रद्धा, मतलब जो तत्व नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। तत्व का अर्थ भी रियलिटी होता है कि जो सच है वो तत्व, जो सम्यक है, जो सम्यक बात है वही तत्व है। जो बात सम्यक नहीं है वो तत्व नहीं। इसीलिए सबसे पहली तत्व की एक ही गाथा आपको याद रखनी है, जो तत्वार सूत्र में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र, वही मोक्ष मार्ग है और यही तत्व। आगे जाएंगे। तत्व अरुचि दोष रूप होने पर भी, तत्व अरुचि दोष रूप होने पर भी मिथ्यात्व अवस्था को यहाँ पहला गुणस्थान कहने में 2 अपेक्षा है। तत्व अरुचि दोष मतलब आपको तत्व पे अरुचि हो, ऐसा दोष। आपको तत्व पे अरुचि आ जाए, तत्व पर रुचि ना आए, तत्व को आप तत्व मानो नहीं, तत्व को आप पसंद ना करो, ये सारी चीज अरुचि है। जो तत्व के लिए मेरे मन में अगर अरुचि जागी है, तत्व के लिए अगर मेरे मन में अरुचि जागी है, तो मुझे ये सब चीज पे भरोसा नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगा। तो उसी को ही मिथ्यात्व गुणस्थान कहा है। उसके भी 2 अपेक्षा है, उसमें भी 2 अपेक्षा है। एक तो जीव तत्व की अति प्रारंभिक अवस्था बतानी, मतलब जो हम जीव अभी निगोद और निगोद से बाहर निकलेगा, निगोद में होगा या निगोद से बाहर निकलेगा, वो उसकी अति प्रारंभिक अवस्था है। वहां भी उसको तत्व क्या है वही नहीं पता, क्योंकि जब तक वो संगनी नहीं होगा, संज्ञा तक नहीं पहुंचेगा, उसको तत्व पे कोई भी, उसको तत्व के मामले में जानकारी ही नहीं मिलेगी। तो वो प्रारंभिक अवस्था के कारण भी वो मिथ्यात्व गुणस्थान में होता है। मिथ्यात्व दोष कृश हुआ हो तब प्रकट होने वाले प्रारंभिक गुणों की अवस्था सूचित करनी, मतलब जब मिथ्यात्व दोष थोड़ा कृश हो जाए, थोड़ा सा निर्बल हो जाए और धीरे धीरे आपको सम्यक तत्व के ऊपर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा शुरू हो जाए, तो वो प्रारंभिक गुणों की अवस्था वो भी आपको यहीं पे ही मिलेगी। पहले से अभी आप चढ़ रहे हो, स्वभाव को बदल रहे हो और आप वो थोड़े से भी अच्छे सम्यक तत्व के गुणों का अभी स्वाद ले रहे हो। स्वाद ले रहे हो मतलब वो स्वाद लेते लेते आप अभी भी 48 मिनट तक नहीं पहुंचे। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप मिथ्यात्व गुण के
उत्कृष्ट होने पर सम्यकत्व या तत्व की रुचि का स्वाद ले रहे हो और लेते लेते भी आप 48 मिनट तक उसकी स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचे हो, तो ये अवस्था भी मिथ्यात्व गुण स्थानक की है। आगे जाएंगे। यहाँ पहली अपेक्षा, क्योंकि ये पहले की अपेक्षा सभी एकेंद्रिय से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय जीव तक भवाभिनंदी, मतलब भव में आनंदित, जो जीवों को भव में आनंद मिलता है वो भवाभिनंदी भी जीव, आपको ये नहीं मानना है कि ये बुरे हैं, क्योंकि भवाभिनंदी जीव को भी अगर वो भव्य है तो वो उत्कृष्ट मिथ्यात्व का जो कर्म बंद करेगा वो उत्कृष्ट से एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक ही करेगा। और आपको एक बात की मैं याद दिला दूं कि भवाभिनंदी को बुरा नहीं समझना है, चाहे वो पुद्गल रसिक क्यों ना हो, उसको आपको बुरा इसीलिए नहीं समझना है कि परमात्मा महावीर स्वामी के जीव ने भी तीसरे मरीचि के भव में उत्कृष्ट एक कोड़ाकोड़ी का सागरोपम का आयु बांध लिया था, क्योंकि उन्होंने सम्यक दृष्टि के बाद मिथ्यात्व पाया था। तो भवाभिनंदी जीव माने कि वो अगर एक कोड़ाकोड़ी उत्कृष्ट से अगर वो मिथ्यात्व का बंद कर लेता है तब भी वो तीर्थंकर का जीव हो सकता है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया साइन है, ऐसा उदाहरण हमारे लिए बहुत बढ़िया साइन है कि ऐसा जीव भी तीर्थंकर परमात्मा का जीव हो सकता है। तो आपको भवाभिनंदी वर्ड आ जाने से ही, किसी भी शब्द में भवाभिनंदी शब्द आ जाने से ही ये पुद्गल रसिक है, ये भव में आनंदित है, ये अशुभ जीव है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, बिल्कुल भी नहीं समझना है। क्योंकि अगर वो कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट का वो मिथ्यात्व का बंद करेगा तो वो उसके बाद सम्यकत्व को कभी भी पा सकेगा, वो उसके बाद सम्यकत्व को तो कभी भी पा सकेगा। ठीक है, आगे जाएंगे। भवाभिनंदी यानी पुद्गल रसिक संगनी पंचेंद्रिय जीव गृहीत होते हैं। ऐसी अपेक्षा जो थोड़े से भी एक बार भी सम्यक दर्शन पा लिया है और वो सम्यक दर्शन पाने के बाद, पहला संकित आने के बाद, जैसे नैसार को पहला सम्यकत्व आया उसके बाद भी अगर वो भवाभिनंदी हो रहा है, वो पुद्गल रसिक हो रहा है, तो जैसे उन्होंने तीसरे भव में वापस एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम पाया, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम की आयु पाई और आयु के साथ साथ उन्होंने मिथ्यात्व गुणस्थानक भी पाया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ये जीव संगनी पंचेंद्रिय जीव गृहीत हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरी अपेक्षा में वितराग सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान के वचन पे श्रद्धा ना पाई हो, ऐसे मोक्षाभिलाषी अथवा संसार उद्विग्न मार्गानुसारी जीव, जिसकी मोक्ष की भी इच्छा है, संसार से वो उद्विग्न भी है और मार्गानुसारी जीव भी है, तथा अहिंसा, सत्य आदि 5 यम, शौच, संतोष, ईश्वर, प्रणिधान, तप, स्वाध्याय रूप 5 नियम वाले भी अगर जीव हो ना, तो भी वो इसमें गृहीत हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी जीव जो मार्गानुसारी है, जो अहिंसा आदि 5 यम आदि का नियम वाले हैं, जो मोक्षाभिलाषी है, जो संसार से उद्विग्न है, वो भी एक बार सम्यकत्व खोने के बाद भी, क्योंकि ये अगर ये सारे हैं तो उन्होंने एक बार सम्यकत्व तो पाया ही पाया, वो भी मिथ्यात्व पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान पे जो हमने चारों प्रकार की जो अवस्था जानी थी, वो चारों प्रकार की अवस्था यहाँ आपके सामने अभी क्लियर हो चुकी है। अब आगे जाएंगे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथ्यात्व गुणस्थान आप सबको क्लियर हो चुका होगा। क्या मैं 1 मिनट रुक सकती हूँ सवाल पूछने के लिए? आप लोगों को ये पहला जो स्टेप है उससे मिथ्यात्व गुणस्थान क्लियर हो चुका है। यहाँ चारों प्रकार की मिथ्यात्व की अवस्था आ गई है। चलो, मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कोई भी प्रकार का आगे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आएंगे हम दूसरे सास्वादन गुण स्थान पे, जो पहले की अपेक्षा इतना ये विकास संपन्न है कि इसमें मिथ्यात्व उदय में नहीं है। इसमें मिथ्यात्व उदय में नहीं है, क्योंकि जब सास्वादन गुणस्थान पे जीव गिरता है तो वो 11वें गुणस्थान से यहाँ गिरेगा।
11वें गुण स्थान से अगर कोई जीव उपशम श्रेणी बांधी होगी, वो यहाँ पे गिरेगा तो उसको 48 मिनट तक सम्यकत्व का स्वाद रहेगा। इसलिए आपको ये समझना है कि सास्वादन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं, लेकिन मिथ्यात्व सत्ता में जरूर है। आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे मिथ्यात्व उदय में नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व सत्ता में जरूर पड़ा है। और दूसरी बात, मिथ्यात्व का उदय हुआ है इसीलिए आप सास्वादन पे आए हो। देखो एक और बात ध्यान दो, यहाँ पे दो अवस्था आएगी। एक तो आपको अभी सम्यकत्व का स्वाद है, चालू है, 48 मिनट तक आपको सम्यकत्व का स्वाद चालू है, लेकिन आपको मिथ्यात्व का उदय भी हो चुका है। अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता तो आप सास्वादन पे गिरते ही नहीं। तो मिथ्यात्व उदय में हो चुका है और आपके सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा हुआ था, इसी कारण से आप दूसरे गुण स्थान पे आए हो। ठीक है, मेरे हिसाब से सास्वादन का आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय उनको नहीं हुआ होता तो सास्वादन पे वो गिरता ही नहीं। दूसरा, अगर मिथ्यात्व अगर सत्ता में नहीं होता तो भी सास्वादन पे वो गिरता ही नहीं, फिर भी ये गुण स्थान पहले गुण स्थान से चढ़ के प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पहले गुण स्थान से जब तक 48 मिनट तक आप सम्यकत्व को धारण कर लोगे तो सीधे तीसरे पे चले जाओगे। देखो यहाँ समझना है कि पहले से चढ़ने में आप ये दूसरे गुण स्थान को प्राप्त इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आपको पहले गुण स्थान पे सम्यकत्व का स्वाद लग गया तो धीरे धीरे जब तक वो 48 मिनट तक स्टेबल नहीं हुआ, 48 मिनट तक स्टेबल मतलब आपकी श्रद्धा 48 मिनट तक बिल्कुल अड़ग हो गई, नहीं यही सत्य है और मुझे मोक्ष चाहिए ही चाहिए, मैं इस जन्म मरण की परंपरा से छूटना चाहता हूं, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूं। अगर आपकी मक्कमता, ऐसी मक्कमता 48 मिनट तक स्थिर हो गई ना तो आपको सीधा मिश्र गुंठाना मिल जाएगा तो दूसरे पे रहने का तो संभव ही नहीं, आप दूसरे को तो प्राप्त ही नहीं करोगे, क्योंकि आप रोज जब भी आपकी कोशिश चल रही थी तब आप 48 मिनट के पहले ही आप नीचे उतर जाते थे, तो सास्वादन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए चढ़ने में सास्वादन इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप 48 मिनट तक मिथ्यात्व सम्यकत्व में टिके ही नहीं हो, इसलिए आप नहीं आए। तो सास्वादन गुण स्थानक सिर्फ 48 मिनट तक सम्यकत्व टिके उनके लिए ही होता है। सम्यकत्व, हाँ, वो भी अपेक्षा से सम्यकत्व कहूंगी मैं, मिथ्यात्व नहीं। अगर आपका वापस मिथ्यात्व सम्यकत्व पाने के बाद, उपशम श्रेणी से गिरने के बाद आप सिर्फ 48 स्वाद में रहोगे तो ही सास्वादन पे रहोगे, ये बात क्लियर कर लो। ओके, आगे जाएंगे। फिर भी ये गुणस्थान पहले गुण स्थान से चढ़ के प्राप्त नहीं होता, किंतु चौथे गुण स्थान से गिरते हुए को जरूर प्राप्त करता है। अगर आप चौथे से गिर रहे हो तो भी सास्वादन पे 48 मिनट तक रुकोगे, 5वें से, 6ठे से, 7वें से, 8वें से, 9वें से और 10वें से, ये सारे गुणस्थान से आप गिर के सास्वादन पर जा सकते हो। ठीक है, चौथे से तो हम कितनी बार गिरे होंगे हमको ही नहीं मालूम, चौथे से तो कितनी बार गिरे होंगे हमको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में शिथिलता आ जाती है, पता नहीं ये सच होगा कि नहीं। भगवान तो कह गए, लेकिन केवली तत्वम गम्यम, जो बार बार एक शब्द बोलेगा ना, केवली तत्वम गम्यम, केवली परमात्मा को जैसा तत्व जानते हैं, बस हो सकता है वही सही होगा, हमें नहीं पता। जब हम ये बोल देते हैं ना, तब आप समझ लो कि आपके मन में जरूर शंका है। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि केवली परमात्मा ने बताया है तो ये जरूर सच होगा। हो सकता है केवली परमात्मा ने बताया हो तब तो ये सच भी हो। ठीक है, तो ये जो है ना श्रद्धा में डगना, वो यहीं पे हो जाएगा। आगे जाएंगे। यह इस प्रकार जीव जब सम्यकत्व अवस्था में शिथिल होता है और उसमें अनंत अनुकषाय
उदय में आते हैं। अनंतानुबंधी जिसको भी उदय में आएगा वो सास्वादन पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही अनंतानु का उदय आएगा, कोई भी अनंतानु क्रोध मान माया लोभ, अनंतानु का उदय आते ही आप मिथ्यात्व गुण स्थान को वापस पाओगे। सबसे पहले देखो, मिथ्यात्व को वापस पाने का कारण ही अनंतानु है। यहीं पे मैं 1 मिनट रुकूंगी, ध्यान दीजिए आप। अनंतानुबंधी कषाय किसको कहते हैं? कोई भी क्रोध 12 महीने से ज्यादा टिक गया ना आपका, किसी के ऊपर गुस्सा है और इतना गुस्सा है कि 1 साल अगर वो क्रॉस कर गया, 2 साल 3 साल 4 साल 25 साल, समझ लो आपका वो क्रोध कषाय अनंतानु का हो चुका है। आपको 1 ही साल के अंदर अंदर जिस किसी पे भी गुस्सा आया हो, जिस बात के लिए अहंकार आया हो, मान आया हो, माया की हो किसी के भी साथ, लोभ किया हो किसी को कोई चीज ना मिले उसके लिए, ये सारा आपको 1 साल से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव संवत्सरी के पहले सभी से मिच्छामि दुक्कडम कर लेता है। इसका कारण ही यही है कि वो कोई भी छोटा सा छोटा कषाय भी वो 1 साल को क्रॉस करने नहीं देना चाहता। आपका जो संवत्सरी प्रतिक्रमण है वो 1 वर्ष में आ जाना चाहिए, उसका कारण भी यही। जो साल में 1 बार प्रतिक्रमण करता है ना, उसको साल में 1 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब वो 1 बार प्रतिक्रमण करेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं 1 साल के अंदर ये प्रतिक्रमण करके मेरे सारे कषायों को मैं खत्म कर दूं, शिथिल बना दूं। वो अनंतानु नहीं होना चाहिए। वो 1 साल क्रॉस करके आगे जाना ही नहीं चाहिए। अगर गया तो मिथ्यात्व का बंध हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे। जीव गिरकर दूसरे सास्वादन गुण स्थानक में अल्प काल अवस्थित रहता है। अब मिथ्यात्व का उदय आएगा, जीव गिरेगा, दूसरे गुण स्थान पे आएगा, तो अल्प काल उसमें ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट, बस ज्यादा से ज्यादा। अल्प काल में कितना भी कम समय हो सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा 48। ठीक है, 48 से ज्यादा वो वहां रुकेगा ही नहीं। अनंतानु कषाय बंदी कषाय का उदय मिथ्यात्व को तुरंत उदय में खींच के ला देता है। अनंतानु आ गया ना, जैसे ही कषाय उदय में आया वो तुरंत मिथ्यात्व को ला देगा, और जैसे ही मिथ्यात्व आपके उदय में आ गया, आप तुरंत पहले गुण स्थान में चले जाओगे। अब आओ मिश्र गुण स्थान। अभी ये दूसरा तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसलिए ये टॉपिक बाद में लिया, क्योंकि 2 बार यही सब्जेक्ट को हमने घूटा है, और उसके बाद मैं ये ले रही हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जब पहला गुण स्थानक वाला जीव मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कषाय दोनों का उदय रोक देता है, मतलब आपके ये दोनों का उदय मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का भी सत्ता में शिथिल हो गया, सत्ता से वो बाहर निकल गया और वो शिथिल हो गया, चाहे सत्ता में पड़ा हो, लेकिन उदय अगर शिथिल हो गया, आपने मिथ्यात्व मोहनीय कर्मों को शिथिल कर दिया और अनंतानुबंधी कषाय को भी शिथिल कर दिया। आप अलर्ट हो, आप सभी कषाय को तुरंत मिच्छामि दुक्कडम करके खत्म कर रहे हो। आप उसको मन में 2 महीने से 15 दिन का मतलब ये हो गया संजवलन कषाय की 4 अवस्था है। एक तो 15 दिन में खत्म करो। जो पक्षी प्रतिगमन है ना, वो बिल्कुल इसी के लिए हमारे चारों प्रतिगमन परमात्मा ने बहुत सोच समझ के दिया है। पक्षी प्रतिक्रमण है तो अगर आप कर रहे हो और 15 दिन के अंदर अंदर कषाय आप अपने खाली कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पक्षी प्रतिक्रमण करके, तो समझ लो आपने संजवलन कक्षा का कषाय बांधा है। आप रोज खाली कर रहे हो देवसी राय प्रतिक्रमण करके, तो ये बहुत ही उत्तम है। मगर मान लो कि रोज प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो, पक्षी प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो 15 दिन में आप ये कषायों को 15 दिन तक बांध रहे हो, 15 दिन तक आपके अंदर ये क्रोध मान माया लोभ कषाय बंधे, तो वो संजवलन कक्षा के होंगे। टॉपिक आया नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी। तो संजवलन कक्षा का कषाय जो है वो बहुत ही शिथिल गांठ वाला होता है।
वो तुरंत छूटेगा। उसके बाद दूसरा आएगा 4 महीना। अगर आपने 4 महीना तक वो चौमासी प्रतिगमन में भी वो खाली नहीं किया, आपने अपने अंदर भरे हुए कषाय को खाली नहीं किया, 4 महीना अगर वो टिक गया, 4 महीना 15 दिन डेडलाइन है। 15 दिन के बाद ही, जैसे 15 क्रॉस की गया, 16 से ही प्रत्याख्यानीय शुरू, प्रत्याख्यानीय कषाय शुरू 15वें दिन से ही, क्योंकि आपने 15 दिन खींच लिया। उसके बाद 4 महीने तक, 15 दिन से 4 महीने तक प्रत्याख्यानीय। अब 4 महीने से लेके 12 महीने तक अगर आपके कषाय बंद रहे तो वो अप्रत्याख्यानीय बंदेंगे। अप्रत्याख्यानीय शब्द को याद रखना। ऐसे कषाय है जो आपके 8 महीने तक टिक गए तो उसको खोलने में, वो कर्म को शिथिल करने में ज्यादा समय लगेगा। वो कर्म का वेदन इजी नहीं होगा। और अगर अनंतानु हो गए, मतलब साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप शत्रुता के अंदर बिल्कुल बन चुके हो, ऐसी गांठ मार दी है कषाय की कि उसको तोड़ने में मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त हो जाए, लेकिन आपके अंदर सम्यकत्व या समझ आई। ठीक है, तो मिश्र गुण स्थान में आपको तीसरा गुण स्थान जब भी प्राप्त हो, तब आपका जीव, आपकी समझ अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व मोनी को उसने रोक लिया है। उसने ये 2 को रोक लिया है, लेकिन आप प्रत्याख्यानीय में भी हो सकते हैं, अप्रत्याख्यानीय में भी हो सकते हैं। ये 2 में आप जरूर हो सकते। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान वाला जीव सम्यकत्व खोकर मिश्र मोहनीय कर्म का वेदन करता है, तब वह तीसरा गुण स्थान प्राप्त करता है। वो सम्यकत्व खो देगा तो वो मिश्र में आ जाएगा। कभी पाएगा, कभी खोएगा, कभी पाएगा, कभी खोएगा। वो खोएगा तो नेचुरली, अगर आपने सम्यकत्व खो दिया तो आप मिथ्यात्व में ही हो, कोई तीसरी बात ही नहीं। या तो समकित में हो या मिथ्यात्व। अगर आपने सम्यकत्व खो दिया तो आप तुरंत मिथ्यात्व में आ जाओगे, मिथ्यात्व खो दिया तो आप सम्यकत्व में आ जाओगे। लेकिन मिश्र में एक फायदा है कि आप बार बार सम्यकत्व को पाते हो। मिश्र में एक फायदा जरूर है कि आप बार बार सम्यकत्व को पा सकते हो। आपने उसको पूरा नहीं खोया। ठीक है, मिश्र अर्थात, अब सुनिए, नालिकेर द्वीपवासी। अब नालिकेर द्वीपवासी की बात करेंगे। पहले भी आई थी ये बात, अभी भी आई है। उसको आपको 2 प्रकार से समझना है। एक तो नालिकेर जो द्वीपवासी होता है, बिल्कुल नारियल की तरह उसको समझना है। नारियल की तरह, कि नारियल कैसा होता है, बाहर से बिल्कुल कड़क है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, मीठा है, सब है। मतलब अंदर उसको सब भरा हुआ है, उसके अंदर सम्यकत्व भरा हुआ है, लेकिन बाहर का उसका जो कर्म का आवरण है बिल्कुल मिथ्यात्व और उससे रिलेटेड इतना भरा हुआ है कि वो अपने अंदर के सम्यकत्व का उघाड़ ही नहीं कर पा रहा है। वो 48 मिनट से ज्यादा वो उघाड़ ला ही नहीं पा रहा है। ये, और दूसरा आपको एक दूसरे द्रव्य से जानना है, इसको द्रव्य से भी जानना है। ये तो मैंने आपको गुण बताया था, गुण और उसकी पर्याय बताई थी कि अलग अलग समय में उसकी स्थिति अलग अलग जाएगी। कभी वो ज्यादा सम्यकत्व में रहेगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, कभी वो ज्यादा मिथ्यात्व में रहेगा तो सम्यकत्व से कम रहेगा। लेकिन द्रव्य से भी आपको जानना है कि जैसे नारियल द्वीपवासी कोई भी व्यक्ति सिर्फ नारियल का ही आहार करता हो, उसको सिर्फ नारियल ही, क्योंकि उसके द्वीप में नारियल ही नारियल और कुछ है ही नहीं, तो उसके आहार में सिर्फ नारियल रहेगा, तो उसको बाकी कोई अन्न पता ही नहीं है, तो रुचि कैसे आएगी? रुचि अरुचि कुछ नहीं है उसको मालूम ही नहीं है कि दूसरे अन्न का स्वाद कैसा होता है, अन्न कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बस ऐसी बात हो गई। उसको मालूम ही नहीं कि आगे अलग अलग चीज कैसी होती है, क्योंकि नालिकेर द्वीपवासी सिर्फ नारियल ही पाता है और नारियल का ही आहार करता है, तो उसको और कोई आहार मालूम ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये जीव जो मिश्र जीव है, वो तत्व पर रुचि अरुचि उसको कुछ पता ही नहीं, तत्व क्या है, तत्व मालूम ही नहीं है, तो उस पे रुचि हो या उस पे अरुचि हो, ऐसी कोई बात उसके दिमाग में आएगी नहीं। तो वो बिल्कुल बीच की अवस्था है, बिल्कुल मिश्रण अवस्था में है, इसलिए इसको मिश्र गुण स्थान करेंगे। आगे जाएंगे, अविरति सम्यक दृष्टि। इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा ये पढ़ लूं, फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। ठीक है,
सम्यक दृष्टि गुण स्थान, ये जो अविरति सम्यक दृष्टि है उसका दूसरा ही नाम, उसका नाम ही अविरति सम्यक दृष्टि, इसका नाम ही है अविरति सम्यक दृष्टि। अविरति का अर्थ है अव्रत, जिन्होंने अभी व्रत नहीं लिया, जो व्रतधारी ना हो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। यहाँ पे आपको इसका इस प्रकार से अर्थ करना है कि जो व्रतधारी ना हो वैसे सम्यक दृष्टि जीव। तो जीव जैसे हमारे ऊपर के 3 गुणस्थान गए हैं, मिथ्यात्व, अनंत, अनुबंधी, मिश्र मोह का उदय उसने रोक दिया है, या तो रोक दिया है या खत्म कर दिया। यहाँ 2 चीज आएगी, क्योंकि उपशम भी हो सकता है और क्षीण भी हो सकता है। वो धीरे धीरे मिश्र मोह में से क्षीण होके मिथ्यात्व को क्षीण होके आगे भी बढ़ सकता है। उसको रोक कर सम्यकत्व गुण प्राप्त करता है, परंतु अहिंसादि व्रत आदि उसने लिए नहीं है। उसको भाव से, तो देखो यहाँ अब आपको पता चलेगा क्रिया कितनी जरूरी। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिया का महत्व क्या है। आप ऐसे बहुत से अलग अलग जैन अनुपंथों को जानोगे कि जो बोल रहे हैं कि क्रिया जरूरी नहीं, क्रिया में समय नहीं बिगाड़ना है, भाव होने चाहिए, बस अंदर उत्कृष्ट भाव आ गए तो भाव से ज्यादा कुछ नहीं, बस भाव उत्कृष्ट लाओ, आत्मा में समझ लाओ, आत्मा को देखो, क्रिया हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया कोई महत्व की नहीं है। जो जीव ये समझते हैं ना, उसको लिए आपको समझना कि ये सारे जीव अविरति सम्यक दृष्टि पे है। इनको सम्यक कैसे हो ये तो मालूम है, इनको ज्ञान तो आ गया है, ये जीवों को ज्ञान मिल गया है, ये जीवों को ज्ञान का परिणाम पता है कि आप जो जान रहे हो, जो आप समझ रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, वो सब पता है, आत्मा की स्थिति क्या है सब मालूम है। लेकिन व्रत, अहिंसादि व्रत और उसका पालन, अहिंसादि व्रत का पालन सिर्फ क्रिया से हो सकता है, सिर्फ क्रिया से। आपको यार समझना है। अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे पंचेंद्रिय जीव की हत्या नहीं करनी, मैंने ये सोच लिया, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे पता है, लेकिन अगर जब पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की बात आए, जब चलने की बात आए, तो चींटियां चल रही है, फिर भी मैं उसके ऊपर पैर रख के जा रही हूं, उसको बचाने की कोशिश ही नहीं कर रही हूं, और ये सोचूंगी कि भाई जिसके जीवन में जितना आयुष्य लिखा होगा वो होगा। मच्छर उड़ रहा है, मैं जोर से ताली से मार रही हूं उसको, ये तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो ये सारी चीज आपके अंदर क्रिया में अगर नहीं आई ना, तो आप अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान में ही हो। आप अगर रोजे रोज का प्रतिक्रमण ना करो, 15 दिन का प्रतिक्रमण ना करो, तो यही बात हो गई कि बस आपकी समझ में है। तो जो अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय कषाय है वो तो बंधन होगा ही होगा। जो रोज नहीं कर सकता उसको साल का एक तो करना ही चाहिए। आप अनंतानुबंधी से अगर प्रतिक्रमण नहीं किया ना तो नहीं बच पाओगे, याद रखना इतना। क्रिया उतनी ही जरूरी है जितनी समझ होनी चाहिए, जितना दिमाग जरूरी। बहुत सिंपल उदाहरण है, मुझे भूख लगी है, मैंने सोच लिया इडली सांभर डोसा पिक्चर देख लूं, बस पेट भर लो, बस खाली सोच लिया, इडली देख ली, इडली का पिक्चर देख लिया, सांभर का पिक्चर देख लिया, है ना, डोसा का पिक्चर देख लिया, हो गया बस। आंबिल, मुझे आंबिल करना है, आंबिल जरूर है, करना ही चाहिए। आंबिल की वो कोरे मग देख लिए और लुखी रोटी देख ली, बस हो गया आंबिल। क्या देख लेने से होगा क्या? नहीं होगा, करना पड़ेगा। आंबिल का खाना खाना पड़ेगा, विगई का त्याग करना पड़ेगा, एक ही टाइम खाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। अगर ऐसे ही भूख लगी है तो खाली डोसा इडली का पिक्चर देख के पेट नहीं भरेगा, वो आपको उसका आहार करना पड़ेगा। तो जो आहार कर रहे हो ना वो क्रिया, जो आहार कर रहे हो वो क्रिया है। और भूख लगी है तो क्या ज्ञान से देखो, आप वो ज्ञान से सोचो कि आप क्या करोगे तो आपकी भूख मिटेगी। तो ऐसा खाना खाओ
जिससे कोई विराधना ना हो, ये ज्ञान है। मगर बिना क्रिया किए पेट भरेगा नहीं, तो ज्ञान और क्रिया दोनों अविरत चल रहे हैं। आपको यहाँ यही बात समझनी है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थानक में, कि कोई भी खाली सोचने से कुछ नहीं है। खाली सोच लिया क्रिया हो गई, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में ही मोक्ष देता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। कोई प्रश्न होगा तो बताना। तो सम्यक 3 रीत से प्राप्त हो सकता है। अब 3 रीत पे जाएंगे हम। सम्यक किस प्रकार से, अब उसमें 3 प्रकार की क्रिया होनी चाहिए। क्या है? एक तो मिथ्यात्व कर्म का बिल्कुल उपशम किया जाए। आप उसको उपशम कर दो, चाहे दबा दो, उपशम किया जाए। अर्थात विशिष्ट शुभ अध्यवसाय के बल पे अंतर मुहूर्त के काल के उन मिथ्यात्व मोहनीय कर्मों को आगे पीछे दबा के उदयवश करके जितना करके इतना काल मिथ्यात्व से सर्वथा उदय रहित किया जाए, तब उपशम सम्यकत्व प्राप्त होगा। अब ये उपशम सम्यकत्व सोचो, नैसार ने उपशम सम्यकत्व प्राप्त किया था। नैसार ने अपने भव में उपशम सम्यकत्व प्राप्त किया था। उन्होंने उस वक्त ये सोच लिया कि मुनि भगवान ने ये रास्ता बताया है कि हर प्रकार से कर्म का क्षय हो सकता है, तो कर्म का क्षय करके मोक्ष जाना ही चाहिए। उसको अच्छी लगी बात, उसने नौकार ले लिया, नौकार पढ़ भी लिया और नौकार रोज स्तुति भी चालू कर दी और ये भी सोच लिया कि मुझे भी मोक्ष चाहिए। ये उपशम उन्होंने, कोई भी जीव जानबूझ के नहीं करता। यहाँ एक बात पे ध्यान दो, उपशम सम्यकत्व कोई भी जीव जानबूझ के नहीं करता है, पर उसको उसके सत्ता में अनंतानुबंधी का बंध पड़ा हुआ है, वो पता ही नहीं होता है। एक बात समझना, उपशम सम्यकत्व करना कोई भी जीव नहीं चाहता, क्योंकि जब भी सम्यकत्व का समझ आ जाए, समकीत की समझ आ जाए, तो जीव वही सोचेगा कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। उसको वैराग्य भाव ही आएगा, वो जानबूझ के उपशम नहीं बांधेगा। लेकिन अगर उसके सत्ता में अनंत अनुबंधी पड़ा है, तो ही ये उसका सम्यकत्व उपशम होगा। और अगर उसके सत्ता में अनंत अनुबंधी नहीं पड़ा हो, तो आगे सुनिए। मिथ्यात्व कर्म पुद्गलों का शुभ अध्यवसाय वश संशोधन करके अशुद्ध और अर्धशुद्ध पुद्गलों का विपाक उदय स्थगित किया जाए। अशुद्ध पुद्गल और अशुद्ध अर्धशुद्ध, अशुद्ध और अर्धशुद्ध, देखिए इसमें शुद्ध नहीं मांगा है, पहले अशुद्ध लिया है, फिर आधे शुद्ध लिया है। उसका उदय अगर रोक दिया जाए और सिर्फ शुद्ध का वेदन किया जाए, यहाँ अशुद्ध कर्म पुद्गलों को हटाया नहीं है, बिल्कुल हटाया नहीं है, तो होगा क्या? शुद्ध का वेदन किया तो क्षायोपशमिक सम्यकत्व होगा। क्षायोपशमिक सम्यकत्व उसका क्या रिजल्ट है? क्योंकि आपने अशुद्ध और अर्धशुद्ध पुद्गलों का उदय स्थगित कर दिया और शुद्ध पुद्गल का बंद कर लिया, वेदन कर लिया, तो वो वेदन करने से, शुद्ध पुद्गल का वेदन करने से क्षायोपशमिक सम्यकत्व प्राप्त होगा। इसमें भी क्षय और उपशम है, इसमें भी क्षय और उपशम है, लेकिन ये क्षय और उपशम में फर्क है, और जो उपशम समकित है उससे क्षयोपशमिक में बहुत बड़ा अंतर। आगे जाएंगे। अब आ रहा है समस्त शुद्ध। ये तीसरा तरीका है। अविरति सम्यक दृष्टि पे जीव समस्त शुद्ध और अर्धशुद्ध मिथ्यात्व कर्म पुद्गल को, समस्त शुद्ध, जो सारे के सारे शुद्ध है वो सारे शुद्ध और अर्धशुद्ध। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी अशुद्ध पुद्गल नहीं। जो क्षायोपशमिक में अशुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध था, अशुद्ध और अर्धशुद्ध था, अब यहाँ क्या हुआ है? समस्त शुद्ध और अर्धशुद्ध। जो उन्होंने कर्म मिथ्यात्व के कर्म पुद्गल लिए हैं, वो समस्त शुद्ध और अर्धशुद्ध लेकर अनंतानु कषायों का नाश कर दे। अगर वो अनंतानुबंधी कषायों के उदय के सूचित वो सारे कर्म पुद्गल अशुद्ध अर्धशुद्ध पुद्गलों को वो नाश कर दे, तब उसको क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्षायिक सम्यकत्व तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है। उसके बाद तो उसको सीधी श्रेणी ही चढ़नी, फास्ट फास्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो सीधी श्रेणी चढ़ जाएगी
और 48 मिनट में तो वो सीधे मोक्ष हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज आप अभी एक बात पे ध्यान दो कि ये सारी चीज किसको हुई थी कि जिन्होंने जो व्यक्ति अविरति गुण सम्यक दृष्टि गुण स्थान से ही मोक्ष गए, जिनको वीरति सर्ववीरति आई नहीं। आपको मरुदेवा माता का एग्जाम्पल मालूम है। मरुदेवा माता अवीरति सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो अवीरति से ही श्रेणी चढ़ गए, फिर वीरति पे सर्ववीरति तक तो वो पहुंचे ही नहीं। 48 मिनट में ही यहीं से ही उन्होंने समस्त शुद्ध और अर्धशुद्ध मिथ्यात्व कर्म पुद्गलों का उन्होंने बिल्कुल नाश कर लिया, और उनके अनंतानु का उदय नहीं था। उनके अंदर अनंतानु कर्म का ना सत्ता में था ना उदय में था। तो उसका कषायों को उन्होंने नाश करते 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 सीधे क्षायिक सम्यकत्व 48 मिनट में हो चुका उनको। कितनी बढ़िया बात है, आप सोचो। आप मरुदेवा माता को किस प्रकार से श्रेणी चढ़ गए। वो 48 मिनट में सिर्फ इतना सोचा कि अरे मेरे बेटे को तो मेरी चिंता ही नहीं है, मैं ही उसके मोह में हूं। वो तो सारे मोह को नाश कर चुका है, तीर्थंकर बन चुका है। उसके अंदर ना राग है ना द्वेष है, मैं ही मेरे बेटे के राग में अटक गई। तो मुझे भी किसी भी चीज का संसार में राग नहीं चाहिए, मुझे भी मोक्ष ही चाहिए। बस मुझे कोई राग नहीं चाहिए, ना मुझे मेरे बेटे का राग चाहिए। से वो तीर्थंकर बन गया है, वो सिद्ध भगवान बन चुका है। भरत राजा बोल रहे हैं माँ तेरा बेटा तो तीर्थंकर बन गया है, उसको तेरी कोई चिंता ही नहीं है, वो तो तीर्थंकर है, वो क्यों अब तेरी चिंता करेगा। तब माँ को ये रियलाइज हुआ कि मैं ही उसकी चिंता कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर बेटा बेटे बेटे का राग था। बस ये सोचते ही जैसे ही उनका राग चला गया ना, एक ही बात पे राग था उनको, संसार से तो राग था ही नहीं। अनंतानु कषाय तो उनके अंदर थे ही नहीं, बंधा हुआ ही नहीं था। तो अब बाकी रहे कषाय, जो शुद्ध और अर्धशुद्ध, समस्त शुद्ध और अर्धशुद्ध जो भी कर्म पुद्गल थे ना उनके, वो यहीं से नाश होना शुरू हो गया। तो श्रेणी से ही अविरति सम्यक दृष्टि, फिर व्रत में हो सकते, वो व्रत में भी हो। ये तो हम नहीं कह सकेंगे कि व्रत में नहीं होंगे, वो व्रत में हो सकते, वो देशवृत्ति में हो सकते, वो पांचवें गुणठान में हो सकते, जरूर हो सकते, क्योंकि परमात्मा ने धर्म तो बताया ही था। परमात्मा धर्म तो अब बताएंगे, मेरी गलती हो गई। परमात्मा धर्म तो अब बताएंगे, केवल अभी तो वो केवल हुए, अभी तो वो केवल हुए। उन्होंने जो हमारा जो धर्म है उसकी प्ररूपणा ही नहीं की थी, केवली धर्म की। तो माँ को हो सकता है चौथे गुण स्थान से ही हो गया है श्रेणी चढ़ना। समझ सकते हो ना आप कि श्रावकपणा में भी आप किस प्रकार से श्रेणी चढ़ सकते हो। भरत राजा भी श्रावकपणे में श्रेणी चढ़े हुए हैं। तो आप मरुदेवा माता और भरत राजा दोनों को अवीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान से ही, भरत राजा हो सकते हैं कि देशवीरति हुए हो, क्योंकि उनका तो केवल बाद में हुआ है, मगर अवीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान से डेफिनेटली मरुदेवा माता यहीं से क्षायिक सम्यकत्व को प्राप्त करके उसी भव में क्षायिक सम्यकत्व और उसी 48 मिनट के अंदर ही उनका मोक्ष मार्ग में भी गमन और केवलीपना दोनों साथ में हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बस आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों सम्यकत्व में श्रद्धा तो एकमात्र जिन वचन और जिनोक्त जिन वचन और जिन ने परमात्मा ने बताए हुए तत्वों पर ही होती है। ये तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, परमात्मा के वचन ही तत्व बताएंगे। पहली बात, ये तत्व बताएंगे ही परमात्मा के वचन, और उसी के ऊपर ही श्रद्धान होगा, उसको ही मोक्ष मिलेगा। जिनोक्त तत्व में जीव अजीव आदि 9 तत्व भी आ गए, सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग भी आ गया, अरियंत देव, निर्ग्रंथ मुनि, गुरु, सर्वज्ञ उक्त धर्म भी आ गया, चतुर्विध धर्म, और हिंसादि पापों के त्याग की प्रतिज्ञा चाहे आपने ना ली है लेकिन दिल से उसको माना है, आपने उसको दिल से माना है, आपको वो वीरति नहीं है, यहाँ वीरति नहीं है इसलिए अवीरति सम्यक दृष्टि, इसलिए अवीरति सम्यक दृष्टि, लेकिन सम्यक दृष्टि जरूर है और सम्यक दृष्टि के साथ आप यहाँ से जा रहे।
और आपके ऊपर सत्ता में कर्म नहीं था, माता के ऊपर सत्ता में कोई कर्म नहीं था, अनंतानुबंधी तो था ही नहीं। तो 48 मिनट के अंदर श्रेणी भी चढ़ गए और उनका मोक्ष भी हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछो भाई, हो सकता है आपको प्रश्न आए हो उदाहरण में। है कोई प्रश्न? બેન અવિરતિ સમયમાં ખાલી નરુદેવા માતાનું એક્ઝામ્પલ છે કે હજી કોઈ એક્ઝામ્પલ પણ આવે છે? हमको तो पता नहीं है, क्योंकि अविरति, सम्यक दृष्टि और जो संसारीपणा में ही थे और उनको 48 मिनट में खाली ये सोचते सोचते केवल ज्ञान, ये तो सिर्फ मरुदेवा माता को ही हुआ, क्योंकि धर्म की प्ररूपणा अब होनी थी। परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और समवसरण की रचना हुई। वो समवसरण देखने के लिए ही तो भरत राजा और मरुदेवा माता गए, क्योंकि अभी तक तो वो समवसरण में गढ़ के अंदर प्रवेश भी नहीं हुआ है। गढ़ के अंदर माता का प्रवेश भी नहीं हुआ था, और जब वो अंबाड़ी पे दूर से ही वो समवसरण की ओर जा रहे थे तब उनको केवल ज्ञान हुआ है। आपको है ना ये बात समझनी है। परमात्मा जब त्रिगड़े पर बैठेंगे, तीर्थंकर बनेंगे और उसके बाद देशना देंगे, और देशना देने के बाद उनके ज्ञान के कारण अगर किसी को सम्यक दर्शन हो ना, या दीक्षा लेने के बाद, तो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने धर्म सुना, जाना और इनको केवल ज्ञान हुआ। इनको तो धर्म सुना नहीं, ज्ञान जाना नहीं, श्रावक धर्म क्या है वो ही नहीं पता था। परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद श्रावक धर्म तो बताया ही नहीं है किसी को। साधु धर्म, श्रावक धर्म दो की प्ररूपणा भगवान करते हैं, और वो भी केवल ज्ञान होने के बाद। तो केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा ये धर्म बताए, उससे पहले मरुदेवा माता को मोक्ष हुआ। बराबर। तो मरुदेवा माता श्रेणी चढ़े ही उस वक्त जब चतुर्विध धर्म की स्थापना हुई भी नहीं, है ना। इसीलिए आप वो देखो 15 जो भेद है ना, उसमें भी वही है कि चतुर्विध धर्म की स्थापना ना हुई हो और केवल ज्ञान किसको मोक्ष हुआ है, उसके लिए मरुदेवा माता सिद्ध बने, उसके लिए मरुदेवा माता का स्पेशल उदाहरण। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये चौथे गुण अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान पे ही होंगे, क्योंकि व्रत परमात्मा ने श्रावक धर्म, अगर श्रावक धर्म प्ररूपित किया हो और मरुदेवा माता ने श्रावक के व्रत लिया होता तो वो देश वीरति में जाता। तीर्थंकर, हाँ, अतीर्थ, बराबर। जो अतीर्थ जो आपने सिद्ध का भेद जाना था ना, अतीर्थ सिद्ध, अतीर्थ जिन जो हुए, अतीर्थ सिद्ध जो भेद जाना था ना, बस वो भेद में मरुदेवा माता आए, तो वो ही भेद के कारण मरुदेवा माता अविरति सम्यक दृष्टि श्रावकपणे में ही 48 मिनट में उन्होंने क्षायिक सम्यकत्व को भी पा लिया और आयु भी खत्म हो गया, और उसी समय उनका मोक्ष भी हो गया। तो ये हम जरूर जानेंगे कि अविरति सम्यक दृष्टि से भी आप क्षायिक सम्यकत्व बांधते 48 मिनट के अंदर आपकी आत्मा के ऊपर अगर कोई अनंतानुबंधी कर्म ना हो तो आपका मोक्ष उसी समय हो सकता है। वही 48 मिनट श्रद्धा में आप टिक गए, बस। तो क्षायिक सम्यकत्व बांधोगे, और इन्होंने क्षायिक सम्यकत्व भी बांधा, और वही ये बांधने के बाद तुरंत पहले उन्होंने क्षायिक बांधा, और क्षायिक बांधने के बाद उनकी आयु पूरी हो गई। तो ये दोनों चीज साथ में हुई। बराबर। आप बहुत अच्छे से समझ गए कि अविरति सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न है तो बोलो। बहुत ही ट्रिकी जगह है, क्लियर हो जाने बहुत जरूरी, मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये गुणस्थान ही तत्व है। अनिल भाई कहीं बोलता था? हाँ, नहीं ठीक है, ठीक। बोलो ना, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं वो अतीत सिद्ध का ही जब आप बोल रहे थे तो अतीत सिद्ध का ही मैं बोल रहा अच्छा, बाकी कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है ना, तो मैं आगे जाऊं। अभी हम ये अविरति सम्यक दृष्टि को ही समझेंगे। अभी आपको मैं अभी वो हमारा जो
आगे का जो पिक्चर है वो अभी हम पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में अविरति सम्यक दृष्टि को किस प्रकार से यहां से है वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, आओ। आओ अभी यहाँ पे आप अविरति सम्यक दृष्टि को हम समझेंगे। आ गया अविरति सम्यक दृष्टि। देखो यहाँ आपको कुछ चीज ऐसी दिखाई देगी कि यहाँ से आपको बहुत सारा रास्ता दिखाई देगा। देखिए अविरति सम्यक दृष्टि की जगह से आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। दिख रहा है ना? अविरति सम्यक दृष्टि पहले गुण स्थान से भी अविरति सम्यक दृष्टि होती है। पहले गुण स्थान से आप तीसरे में भी जा सकते हो, चौथे में भी जा सकते हो, बराबर। अब अविरति से आप कहाँ कहाँ देखो, अविरति से आपका एरो आएगा, दूसरे में भी आ सकते हो। अगर अविरति सम्यक दृष्टि से आपको अगर मान लो कि मिथ्यात्व का उदय अगर ज्यादा हो गया, 48 मिनट से ज्यादा टिक गया ना, और सम्यक दर्शन अगर बिल्कुल सम्यक दर्शन आपका निकल गया ना, तो आप सीधे सास्वादन से गिर के वापस पहले मिथ्यात्व में आ जाओगे। अविरति से सीधे सास्वादन में और वापस मिथ्यात्व में भी आ जाओगे। और अविरति सम्यक दृष्टि से आप फिर से तीसरे में जाते हो आते हो। देखो ये आपको 2 एरो मिलेगा, आप जाओगे भी आओगे भी, जाओगे भी आओगे। तो चौथे से तो आप तीसरे में भी जा सकते हो, चौथे से आप दूसरे में भी जा सकते हो और पहले में भी जा सकते हो। चौथे से आप वापस दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले, ऊपर भी जा सकते हो। चौथा गुणस्थान ऐसा है कि यहां से आप सब जगह जा सकते हो। अगर आपका जैसे जैसे ही प्लस होता गया, आपका सम्यक दर्शन प्लस होता गया, तो आप ऊपर ऊपर जाओगे और मरुदेवा माता की तरह, और आपका मिथ्यात्व का उदय होता गया तो आप नीचे नीचे उतरते जाओगे। ठीक है ना? ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा, हम ऐसे ही नहीं भटक रहे। बहुत बार कुछ सूझा है, मन हो गया कि हाँ भगवान तो ये जरूर, और किसी एक बात के लिए मिथ्यात्व है ना, भगवान की 99 बात मानो और एक ना मानो ना, तो भी आप मिथ्यात्व पे चले जाओगे। एक बात भी अगर नहीं मानी ना, जमाली ऐसे ही थे, जमाली जो उनके दामाद थे, उन्होंने 99 बात मानी थी, एक ही बात नहीं मानी, एक ही बात नहीं मानी। मगर सम्यक दर्शन हुआ था ना, ये बढ़िया है, तो भवांतर में वो मोक्ष में जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन में जाने के बाद फिर आप मिथ्यात्व में गिरे हो तो मोक्ष तो जरूर होगा, लेकिन भटकोगे ना, भटकोगे भी बहुत। तो 99 बात मानोगे, एक भी नहीं मानोगे ना, तो भी भटकोगे, तो भी भटकोगे। तो तत्व को ही समझने में पूरा जीवन लगा दो, अपनी सारी बुद्धि लगा दो। किसी भी एंगल से हम तत्व को कहीं से भी गलत ना मान बैठे। ठीक है, अब आओ चौथा गुणस्थान, अब उसकी डिटेल को हम देखेंगे। ये चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि है। मैं एरो घुमा रही हूँ और ये एरो से हम जाएंगे चौथा गुण स्थान, और ये एरो हमें बताएगा। देखो इसके जो 3 है ना, 3 1 2 और 3 चीज बताई है, उसको जानो। पहला नंबर में है सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति श्रद्धा तथा व्यावच। आपको श्रद्धा भी रखनी है, यहीं पे दोनों चीज आ गई है, समझिएगा। श्रद्धा का मतलब ही है भाव से उसको मानना, ज्ञान से मानना, और व्यावच का मतलब है कर्म से मानना, क्रिया से मानना। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में जाना चाहिए। हमारा शास्त्र पहले से ये बता रहा है। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। परमात्मा महावीर जी को मालूम था वो चरमभवी है, देवों को भी पता था ये चरमभवी है, फिर भी वो आए उनका समय होते ही और परमात्मा को बोला कि आपका 9 लोकांतिक देव आए और उन्होंने बोला कि भगवान आप दीक्षा लो, आपका समय हो चुका है। 12.5 साल तक वो दीक्षा लेकर घूमे, उनको जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? चरमभवी थे, क्रिया करने की जरूरत थी क्या? अगर ऐसे ही उनको केवल हो जाना था तो सोचो, यहाँ पे दिमाग लगा के सोचो। 12.5 साल वन में या जंगल में भटक के उनको कर्म खपाने की क्या जरूरत थी? अगर जो होना है आपको इसी भव में मिलने वाला है तो आपको क्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा को ही बस बैठ के एक जगह बैठ के वो ध्यान कर सकते थे। क्या जरूरत थी जंगल में चरण कौशिक के सामने खुद जाने की? जरूरत थी क्या?
वो कर्म को खपाने के लिए खुद गए हैं सब जगह। सब जीवों के पास वो खुद गए हैं अपने कर्म को खपाने के लिए। कर्म चल के उनके पास उन तक नहीं पहुंचा है। एक जंगल में जाके या किसी गुफा में जाके 12.5 साल तक उन्होंने तप नहीं किया है। तो कर्म भोगना, क्रिया करना उतना ही आवश्यक है जितना आपको मन में श्रद्धा लाओ और आत्मा में श्रद्धा लाओ। मन और आत्मा, मन और बुद्धि में श्रद्धा लाओ और साथ में व्यावच भी जरूरी है, क्रिया भी उतनी ही जरूरी है। ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय वगैर मोक्ष नहीं मिल सकता। इस चीज को ध्यान देना। अगर कोई चर्चा भी करे ना तो लड़ लेना उससे, बिल्कुल लड़ लेना कि अगर आप क्रिया नहीं करोगे तो चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दिमाग में क्रिया के प्रति थोड़ी भी गौणता रखी ना। अगर हाँ नहीं कर पा रहे हो अलग बात, नहीं कर पा रहे हो अलग बात, तो भगवान माफ कर देगा। अगर आप 24 नहीं कर पा रहे हो इसलिए प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे हो, भगवान माफ करेगा आपको। भगवान ऐसा समय देगा कि आप 24 कर पाओ। वो ऐसा समय देगा जब आपके वो कर्म घट जाएंगे ना। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानीय कर्म का उदय है, इसीलिए आप प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे हो। सीधी बात, आप अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय का उदय है, इसलिए आप 14 या 8 या ये सारा रोज का प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका वो कर्म वही कषाय जागे हुए उदित में है। तो जैसे ही वो कर्म का उदय कम होगा, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, जब भी मेरे से होगा मैं 24 भी करूंगी और प्रतिक्रमण भी करूंगी। ये नहीं कर रही हूं, ये मेरी गलती है, बस ये दिमाग में रखना जरूर, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे जाएंगे। दूसरा है स्टेप 9 तत्व रुचि। 9 तत्व में रुचि। जीव अगर जन्म लेता है तो अजीव का साथ लेगा ही लेगा। जीव अजीव साथ में ही चलेंगे। अजीव यही है हम आपके जीवास्तिका है कि बाकी के 5 जो है द्रव्य वो सारे अजीव है। तो जीव अजीव पुण्य, अब जीव अजीव के साथ रहेगा तो पुण्य भी बांधेगा, जीव अजीव के साथ रहेगा तो पाप भी बांधेगा। तो ये आपके 4 तत्व हुए, जीव अजीव पुण्य पाप। उसके बाद है आश्रव, फिर संवर। आप कर्म बांधते जा रहे हो, आप कर्म को घटाते भी जा रहे हो, आत्मा को संवर भी कर रहे हो। कर्म का आपके ऊपर नहीं चढ़ने से भी आप बचा रहे हो, चढ़ने से भी आप रोक रहे हो। तो आपको ये भी हो गया, आश्रव भी हो गया, संवर भी हो गया। उसके बाद कर्म बंध से मुक्ति लेनी है। फिर निर्जरा कर रहे हो, फिर मोक्ष तत्व को भी जान रहे हो, क्योंकि निर्जरा आप कर रहे हो तो आपको मोक्ष चाहिए ही चाहिए। अगर मोक्ष नहीं चाहिए तो ना आप संवर करोगे, ना आप निर्जरा करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ये रुचि रखनी है। उसके बाद संयम रुचि रखनी है। संयम रुचि आपको समझना है कि मैं संयम के बगैर तो मैं जीव रक्षा कर ही नहीं पाऊंगा। श्रावक 1.25 वसा ओनली एक અને ઉપરથી ચોથો भाग मात्र 1.25 રૂપિયો जानो छो ने। 1.25 રૂપિયા मालूम है ना। इसी तरह खाली 1.25 वसा की दया कर सकता है, और पूरा का पूरा 20 वसा जो दया पालन है ना वो सिर्फ साधु धर्म करेगा। साधु धर्म के बगैर तो 20 वसा की दया संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो संयम रुचि आपके अंदर होनी ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब भरत राजा को जब देव आए थे कपड़े देने के लिए कि बस आपका केवल ज्ञान हो चुका है, आप साधु बन जाओ तब मैं दीक्षा लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये समझ लो आपको संयम में रुचि ही नहीं है। आप सिर्फ आत्मा साधना और ये चाहते हो, कर्म करना ही नहीं चाहते, क्रिया करना ही नहीं चाहते। इरियावयी क्रिया ही आपको नहीं चाहिए। इरियावयी की क्रिया ही संयम है। उसके बाद धर्मानुष्ठान कुशल, मतलब हर एक धर्म का अनुष्ठान, जो भी धर्म अनुष्ठान है उसमें आपको कुशलता आनी चाहिए, कुशलता पूर्वक धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। फिर अनुकंपाशील, अनुकंपा, दानशील, तप, भाव, ये चारों में रुचि होनी चाहिए। भव से बचना है। भव परंपरा को जानो, निगोद से लेके संगनी पंचेंद्रिय तक के भव जानो, और मनुष्य जन्म वो भी संगनी मांगो मतलब उसके रिलेटेड क्रिया करो। उसकी इच्छा करोगे तो उससे रिलेटेड क्रिया करोगे। फिर भीरू बनो, डरो,
डरो, पाप से डरो और आस्तिक बनो। आस्तिक का मतलब नव तत्व को जानना। आस्तिक का मतलब ही है कि षड द्रव्य को जानना। आस्तिक का मतलब ही है कि ये तत्वों को जानो और तत्व में रुचि रखो, वही आस्तिक है और कुछ नहीं। आस्तिकता होनी चाहिए कि ये तत्व है और ये सच है। परमात्मा ने ये कहा है तो ये सच है। परमात्मा ने कहा है इसलिए सच है, ये नहीं है, ये तत्व है इसलिए सच। ये आस्तिकता है, ये आस्तिकता है। क्योंकि परमात्मा वही कहेंगे जो सच है, ये भी आस्तिकता है। जब परमात्मा वही कहेंगे, केवली वही कहेंगे जो सच है, तो खाली परमात्मा की कई बात नहीं, हर एक केवली की कही बात सच मानोगे आप। आपने ये सोच लिया जो परमात्मा कहेंगे वही सच है, तो जो बाकी केवली कहेंगे उसको आप न मानो तो बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये सारे चौथे गुण स्थान में आपके अंदर पड़े हुए गुण है। ये अंदर पड़े हुए हो तो ही आप चौथे गुण स्थान में हो, वरना नहीं। और ये समय अंतर मुहूर्त से अधिक 66 सागरोपम तक आप चौथे गुण स्थान में ही रह सकते हो। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट समय ये है। 66 सागरोपम का मतलब क्या हुआ पता है? 33 सागरोपम, जो आप 12वें देवलोक का जो आयु बांधते हो ना, 12वें देवलोक भी नहीं, सर्वार्थ सिद्ध की आयु, ऐसी 2 बार बांध दो ना, उतने समय तक भी आप चौथे गुण स्थान में रह सकते हो। आप 5वें में नहीं जा सकते, सोच लो आप। और अंतर मुहूर्त में भी चौथे से आगे 5वें में जा सकते हो। बोलो अब कब जाना है आपको? कोशिश तो वही करोगे ना, अंतर मुहूर्त से ही जितना जल्दी हो जाए। हमको 66 सागरोपम तक तो यहाँ नहीं रुकना है, लेकिन जीव रुक सकता है। परमात्मा ने कहा है तो जरूर जीव रुक सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ जी बोलो, तो मैं आगे जाऊं? आगे जाऊं ना, तो अभी हम उससे ऊपर जाएंगे। देश विरत पे जाऊं मैं, क्योंकि आज अविरत और देश विरत दोनों हमें साथ में करना है। दोनों श्रावक के है ना, तो दोनों साथ में करोगे तो हमें क्या करना है उसकी हमें समझ आएगी, बराबर ना? अब आओ देश विरत गुण स्थान, इसको पहले हम यहीं पे समझ लेंगे, फिर वो पेज पे जाएंगे। देश विरत गुण स्थान क्या है? जो अवीरति पे थे, चाहे आप 66 सागरोपम तक थे, कोई बात नहीं। अब अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अविरत से देश विरत पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको जानेंगे कि समकित सहित, समय तत्व तो यहाँ चाहिए ही चाहिए, समय तत्व नहीं है तो नहीं चलेगा। तो समकित सहित 12 व्रत के कितने विकल्प है वो सोचो। हाँ, 12 व्रत तो मान लिया, समकित सहित 12 व्रत। तो ये 12 व्रत क्या है? श्रावक के 12 व्रत। ये 12 व्रत है, श्रावक के 12 व्रत। और वो 12 व्रत के कितने कितने विकल्प है वो देखो, तो 13 अरब 94 करोड़ 12,27,202 विकल्प हैं। ये 12 व्रत के इतने विकल्प है। अब हम तो इतने विकल्प तो जान ही नहीं पाएंगे, हमको तो सिर्फ 12 व्रत पे फोकस करना है। तो इतने विकल्पों में से 1, 2 अथवा 3 विकल्पों का ये देश विरत है। आप 12 में से मान लो आपने एक विकल्प भी मान लिया, एक विकल्प में से भी, एक में से भी 1, 2 या 3 विकल्पों का एक भी मान लिया हो, 2 भी मान लिया हो, 3 भी अगर मान लिया हो ना, एक व्रत के भी 3 विकल्प अगर मान लिए हो ना, उस विकल्पों का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करना। उस विकल्प को प्रतिज्ञा से पालन करो, प्रतिज्ञा से। और संयम की रुचि वाला, आपको देखो विकल्प बाद में, व्रत बाद में है, संयम की रुचि, संयम की रुचि पहले मांगी। समझ में आ रही है? पहले ચાલ્યો ગયો તો પહેલેથી ठीक है, हाँ ठीक છે, ठीक છે, ठीक છે। समकित सहित 12 व्रत, देखो समकित सहित के 12 व्रत मांगे हैं। सम्यकत्व मूल है आपके लिए, सम्यकत्व मूल है, आप में सम्यकत्व होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब ये मिश्र नहीं है। सबसे पहले यहाँ ये समझो, जैसे ही आप अविरति सम्यक दृष्टि में गए, अब वापस मिथ्यात्व बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो ही आप अविरति में हो। और अविरति में से व्रत में कब आओगे कि आप एक आंशिक, जो श्रावक के 12 व्रत है,
सम्यक दर्शन सहित के 12 व्रत है, उसके टोटल 13,94,12,27,202 विकल्प होते हैं। इतने विकल्प में से 1, 2 या 3 विकल्प का भी अगर आप प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करो, समकित सहित 1, 2 या 3 विकल्प का भी आप पालन करो और संयम की रुचि रखो। 2 चीज आपको, ये 3 चीज बहुत मस्ट मांगी है। एक तो समकित होना चाहिए, दूसरा 1, 2 या 3 विकल्प का प्रतिज्ञा से पालन होना चाहिए, और तीसरा संयम की भी रुचि होनी चाहिए। आंशिक चारित्र पालन करने के लिए कटिबद्ध होने चाहिए, तो ही उसको देश वीरती गुण स्थान पे माना जाएगा। बिंदु बेन, हाँ बोल। તમારો અવાજ ક્યારનો નીકળી ગયો તો અને તમે નીકળી ગયા હતા। કઈ વાંધો નહીં દક્ષા, મને બોલી લેવા દે, રેકોર્ડિંગ તો થાય જ છે ને બેન, ખબર છે ને તને, રેકોર્ડિંગ તો થાય જ છે। બોલ હવે બોલો। संयकत्व के व्रत के, श्रावक के 12 व्रत है, उसको तो आप जानते हो, श्रावक के 12 व्रत होते हैं। अब ये जो 12 व्रत है, वो 12 व्रत के शास्त्र में 13 करोड़, समझना, 13 अरब 94 करोड़, मतलब लगभग करीब 14 करोड़ में थोड़ा न्यून उतने विकल्प बताए गए। 12 व्रत के विकल्प कितने हुए? 14 करोड़ में थोड़े न्यून उतने उसके भाग है, विभाग है, विकल्प है। अब वो विकल्प में से अगर आप 3 विकल्प का भी पालन करो ना, 1, 2 और 3, सिर्फ अगर आप 3 विकल्प का भी प्रतिज्ञा पूर्वक और नियम पूर्वक अगर आप पालन कर रहे हो और साथ में संयम की रुचि है, मैंने संयम लिया नहीं है लेकिन मेरे अंदर संयम के भाव है ही कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे इस जन्म के अंत तक तो मैं दीक्षा लूंगा ही लूंगा या लूंगी ही लूंगी, मुझे ये सादे कपड़ों में मृत्यु नहीं चाहिए। ऐसे अगर आपके अंदर संयम के भाव हो, संयम के प्रति अहोभाव हो, संयम लेने की इच्छा हो, संयम जितना हो सके उतना मैं जल्दी संयम लूं, संयम कब मिले, ऐसे भाव होने जरूरी। और सम्यकत्व तो जरूरी, सम्यकत्व के बगैर तो कुछ नहीं चलेगा। अगर इतनी 3 चीज भी आ जाए ना, 2 ये 3 चीज का विकल्प है, मतलब अगर आप प्रतिक्रमण कर रहे हो तो टाइम से कर रहे हो, नियम से कर रहे हो, रोज कुछ गाथा का स्वाध्याय कर रहे हो, मान लो ये सब नहीं हो रहा है तो कुछ घंटों तक स्वाध्याय करो, या कुछ जैसे है ना, हमारे पास तो श्रावक के जो 12 व्रत है ना, वो 12 व्रत हम करेंगे। वो 12 व्रत में से जो 4 शिक्षा व्रत है, फिर गुण व्रत है, शील व्रत है, वही है जो 12 प्रकार के आपको अलग अलग मिलेंगे। तो वो व्रत आपको, वो व्रत में से अगर 3 विकल्प भी आप कर रहे हो ना, अगर 3 भी विकल्प कर रहे हो ना, वो भी नियम से, और सम्यक की इच्छा है, सम्यक दर्शनी तो हो ही, और चारित्र की इच्छा है, अगर 3 चीज भी है तो आप देश वीरती गुण स्थान में हो। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे कि उसमें चौवियार, फिर नौकासी, उसके बाद कन्मूल का त्याग, उसके बाद जैसे कि आयम्बिल करना या कोई तप करते रहना, तो जो आपके 12 प्रकार के तप है ना, विनय, व्यावच, ये सारा उसी में आ जाता है, ये सारा उसी में आ जाता है। 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, वो जो 12 तप है, वो तप में से किसी भी कोई भी प्रकार का नियम। क्लियर हो गई मेरी बात? अभी ये सारा आप ऐसा मानोगे कि ये सारे व्यक्ति सम्यक दर्शनी भी है, चारित्र की इच्छा वाला भी है, और यही सब आपके लिए मोक्ष जाने की साधना के प्रति उनके मन में भाव भी है, तो वही देशवीरती कहलाएगा। अब मैं ये पढ़ रही हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। देशवीरती गुण स्थानक सम्यकत्व प्राप्त होने पर और सम्यकत्व टिकने पर दोनों बात आएगी। सम्यकत्व प्राप्त हो गया लेकिन बीच बीच में पता नहीं, ये सारी पता नहीं, भगवान हुए भी नहीं मालूम, भगवान ने जो कहा है वो सच है कि नहीं वो भी नहीं मालूम, बहुत बड़ी गलती करोगे, ध्यान देना आप।
और जरूरी नहीं भगवान ने कहा है तो दीक्षा लेनी चाहिए, जरूरी नहीं भगवान ने कहा है तो प्रतिक्रमण होना चाहिए। ये सारी चीजों पे अश्रद्धा ही आप अविरत देश विरत कहीं भी नहीं, आप मिश्र में हो। ये तो आपको सम्यकत्व पर टिके रहने वालों के लिए ही तीसरे से आगे गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शनी के लिए ही है। बार बार मिथ्यात्व में जाने के लिए चौथा गुणस्थान नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? भगवान पे श्रद्धा आने के बाद बिल्कुल डगनी नहीं चाहिए। तत्व पे श्रद्धा आने के बाद हो सकता है ये झूठ हो सकता है दूसरा धर्म कह रहा है वो सच है, दूसरा धर्म कह रहा है वो भी रियलिटी में दिख रहा है, वो मानना अलग बात है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जैन धर्म ने जो कहा है वो दिखना बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं है। ये गलत, ये गलत, क्योंकि दूसरे धर्म से भी मोक्ष है। अब दूसरे धर्म से मोक्ष है तो उनके तत्व में भी कहीं ना कहीं तो सत्यता होनी चाहिए या नहीं? या फिर वो जो दूसरे धर्म वाले हैं वो जब तत्व पे श्रद्धा करेंगे तो मोक्ष होगा, ये नियम है। आप ये समझ लेना, मोक्ष तत्व की श्रद्धा वाले को ही है। फिर अगर कोई वल्कलचेरी जैसे हिंदू धर्म वाले जो भी मान्यता वाले थे उन्होंने भी 9 तत्व और मोक्ष जीव अजीव पर श्रद्धा की, तब उनको उसी स्थान से मोक्ष मिला। अगर वो तत्व पे श्रद्धा नहीं करते ना, मोक्ष पे भरोसा नहीं करते ना, तो वो भी वल्कलचेरी की अवस्था में अन्य लिंग से मोक्ष नहीं जा सकते थे। बात समझ में आई? तो अन्य लिंग से मोक्ष भी उनका तब हुआ क्योंकि वो तो देशवीरती में भी नहीं आए, वो भी अवीरती से गए, वो भी अवीरती से गए। अवीरती से वो कभी प्रतिक्रमण नहीं किया, ना कभी कोई आगे क्रिया की है, वो अवीरती से ही श्रेणी चढ़ गए। अवीरती से श्रेणी चढ़ते गए, मोक्ष की इच्छा थी, कर्म लगे नहीं थे, तो केवल ज्ञान हो गया। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो तत्व पे श्रद्धा सबसे मजबूत होनी चाहिए। मजबूत करो, मजबूत रखो। तत्व पे श्रद्धा नहीं होगी ना तो सारा धूल मिट्टी में, आपने जो भी किया है वो सब। अगर भगवान की बात पे श्रद्धा रही, अगर तत्व पे, अगर मोक्ष पे ही श्रद्धा नहीं, मोक्ष है ऐसी मान्यता ही नहीं, हो सकता है वहां जाके वापस आना पड़ जाए। ये संसार बिल्कुल आसार नहीं, बहुत अच्छा है, तो मतलब होगी आपको कि आपको तत्व पे श्रद्धा ही नहीं, क्योंकि भवाभिनंदी आप हो गए, पुद्गलाभिनंदी हो गए। उसको मानना नहीं है। आप जो स्थिति में हो वो स्थिति से बाहर निकलने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी हो सके मैं मेरी ये स्थिति में से बाहर आ जाऊं। तो ये श्रद्धा और यहां से निकलने की एक बार की इच्छा के बाद उस पर टिकना 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 टिकना, ठीक है? वो टिक गए ना तो उसके बाद आपके अंदर अगर कर्म अनंतानु के नहीं है ना तो 48 मिनट में वहीं से भी मोक्ष हो जाएगा। चाहे वो आप श्रावक में हो, चाहे वो आप वल्कलचेरी जैसे अन्य लिंग में हो, चाहे मरुदेवा माता की तरह श्रावक में हो, चाहे भरत राजा की तरह राजापणा में और श्रावक में हो, तो श्रद्धा ही काम आएगी, श्रद्धा ही टिका के रखेगी। बराबर समझ में आया? हाँ। उसके बाद तो आपको जब क्रिया आएगी, भरत राजा को और वल्कलचेरी को केवल ज्ञान होने के बाद देवों ने आके वस्त्र दिए कि भाई अब तो आपको कंपलसरी दीक्षा लेनी है। 4 घाती कर्म का क्षय तो हो गया है, अब बाकी के 4 अघाती का भी आपको क्षय करना है और केवली की तरह दूसरे को ये इस पदार्थ का स्वरूप बताना है। तो वो बताने के लिए भी अब आपको दीक्षा लेनी पड़ी। भरत राजा को अरीसा भवन में केवल ज्ञान होने के बाद देवों ने आकर वस्त्र दिए कि अब आप ये दीक्षा के वस्त्र धारण करो, अब आप लोच करो और बाकी सारी जो दीक्षा की जो प्रवृत्ति है, जब तक आपका आयु बाकी होगा
आप दीक्षा के भाव में प्रतिक्रमण अतिक्रमण सब करते हुए जाओ। करना तो पड़ेगा उनको भी, दीक्षा के बाद करना पड़ेगा, क्रिया में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो है, इरिया वही धर्म ही तो है जो जीव रक्षा करेगा। ये क्रिया ही धर्म है, इरिया वही, इरियापथी की जो क्रिया है ना, वही अहिंसा धर्म है। ये बात आप समझ लो बस आज का, इरियापथी की क्रिया ही अगर अष्ट प्रवचन माता जो आगे शब्द आ गया, वही अगर अहिंसा धर्म है, वही अगर सत्य धर्म है, तो फिर वो क्रिया से हमको क्यों भागना चाहिए? पहले से ही नहीं भागना चाहिए। पहले से हमें ये सोचना चाहिए कि आत्मा आत्मा आत्मा, और खाली ज्ञान लेना बिल्कुल जीरो, आगे पीछे जीरो, मतलब आगे लिखे हुए अक्षर के बगैर का जीरो है। आगे जब तक एक अक्षर क्रिया का नहीं लगेगा ना, ये सारा बेकार। ये ज्ञान के आगे कितने भी आप जीरो लगा दो, कितने भी ज्ञान के जीरो लगाते जाओ, जब तक आगे क्रिया का एक नंबर नहीं आया तब तक सब बेकार। तो आज आपने ये जाना श्रावक के जो 2 गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि गुण स्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान और देश वृत्ति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अब श्रावक के जो 11 व्रत और जो उनके जो 12 व्रत जो नियम है वो हम बाद में जानेंगे, क्योंकि जो जब वो सब्जेक्ट आएगा तब, अभी तो हम ये गुणस्थान में ही आगे बढ़ेंगे। तो वो डिटेल्स इसमें क्या होगा, आप फर्स्ट ईयर में सारी चीज को एक स्वरूप के रूप में जान रहे हो कि भाई ये पूरे जगत में क्या क्या है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए कौन से पदार्थ और तत्व को हमें जानना पड़ेगा। तो आप ये अभी तत्व, मोटे मोटे तत्व, मतलब जो बड़े बड़े शब्दों में अब हम जानेंगे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इसकी डिटेल में जाएंगे। तो श्रावक के व्रत और उसमें मैं आगे अभी नहीं जाऊंगी, पंचमहाव्रत साधु के भी जो आएंगे तब भी हम उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, बस वो धर्म के मामले में क्या है और कौन से गुण स्थान में कौन सा धर्म है हम वही जानेंगे। तो अभी जो आपके अविरति सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति सम्यक दृष्टि खत्म हो गया। देश वृत्ति के बाद पहले थोड़े से नियम आएगा, उसके बाद सीधी सर्ववृत्ति आएगी। तो 5वें गुण स्थान देश वृत्ति के बाद 6ठा आएगा, जो गुण स्थान आएगा सर्ववृत्ति, उसके बाद ही हम आगे प्रमथ अप्रमथ सारी चीज आपकी आगे चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद कोई प्रश्न हो तो पूछो, और प्रमथ सर्ववृत्ति गुणस्थान हम अगले क्लास में करेंगे। बराबर? कोई प्रश्न है तो पूछो। 8:30 हो रहे। ठीक है, तो अभी अगली क्लास में करें। हाँ, कोई बात नहीं, अभी अगले क्लास में करें। वापस एक बार सुन लेना, अगर कुछ नहीं सुनाई दिया है या कम सुनाई दिया है तो, और फिर अगर कुछ प्रश्न होगा तो आप अगले क्लास में कर लेना। ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।